Good morning, dear students. So today we'll discuss about the order of reactions. As in the last lecture we have discussed about the rate law expression and the factors affecting rate of reaction. Rate law expression is about the concentration terms on which the rate depends, which is experimentally been proved that it is not necessary that all the stoichiometric coefficient of the reacting species is responsible for the rate of reaction. Basically, in the multi-step reaction, the slowest step is the rate determining step. The fast steps does not matter for determining the rate of reaction. So on the basis of rate law expression, we have said that the order of reaction is what? That is the sum of the coefficient of the reacting species that are involved in the rate law expression for a particular reaction that is being determined experimentally and is known as the order of reaction. जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था इस जनरल रिएक्शन के थ्रू, एंड आई हैव टोल्ड यू that according to law of mass action, जब हम इस पर law of mass action अप्लाई करते हैं, then rate यानी R is directly proportional, या सीधे सीधे मैं rate constant के बेसिस पर बता देती हूँ, R is equal to K active mass of A raised to the power A, active mass of B raised to the power B, and active mass of C raised to the power C must be there. But experimentally it has been proved that all the concentration terms are not responsible for determining rate. So suppose if I say that only P concentration term of A, Q concentration term of B, and R concentration term of C is responsible to determine the rate of reaction. यानी ये सारा का सारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है रेट को डिटरमाइन करने के लिए, इसका कुछ पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, तो इन सबका सम क्या कहलाता है, यानी P प्लस Q प्लस R, जिसको मैं N से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, द सम ऑफ कोएफिशिएंट, द सम ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. ये क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंटली क्या लिखा जाता है, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, सो अगेन राइट, अगेन लिसन, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ reaction is called the order of reaction. So here N is what? N is the order of reaction. इसको हम order of reaction कहते हैं. So it can also be understood with the help of this example. Suppose here 5 Br ion, BrO3 ion and 6 H ion combine to give 3 bromine and 3 water molecules. So if I apply law of mass action over here, अगर मैं यहाँ पर law of mass action apply करूँगी, so R would be equal to K Br ion raised to the power 5 into BrO3 ion into H ion raised to the power 6. यही होना चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग. बट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, because it is a very complicated reaction takes place in number of steps. तो number of steps में अगर ये reaction हो रही है, so fast step does not matter to determine the rate of reaction. Only the slowest step determine the reaction, and in the slowest step only one concentration term of Br ion, one for BrO3 ion and 2 for H ion is responsible. ठीक है, केवल इसके 1 कंसंट्रेशन टर्म, इसके 1 और इसके 2 पर ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है. दैट इज अबाउट द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड एक साथ नहीं कर सकते हैं.
सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मान लीजिए n इज इक्वल टू व्हाट, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1 एंड इसकी पावर क्या है 2, सो इट इज व्हाट 4. इट मींस इन द केस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4. इज दैट क्लियर? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कोफिशिएंट है रिएक्टिंग स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन टर्म का जिस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. सो इन द केस वी आर हैविंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4. नाउ लेट्स सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा, उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, है ना. यहाँ तो हमने डेफिनेशन देख ली कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या, ये उन कोफिशिएंट्स का सम है जो कि जितनी भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन टर्म रेट को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और यू में से अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरेटिकल टर्म नहीं है, थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है, यानी इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. द नेक्स्ट इज, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज नॉट मैंडेटरीली बी अ होल नंबर. ये जरूरी नहीं है कि ये एक होल नंबर हो. इट मे बी अ होल नंबर, इट मे बी 0, इट मे बी इन फ्रैक्शन. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, सबसे पहली बात वो एक इंटीजर होता है. द नेक्स्ट थिंग इज, ये क्या क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये एक होल नंबर हो सकता है और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. इसको हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना होता है. So these are some points that we are to notice. It means हमारा जो order of reaction है वो 0 order भी हो सकता है, वो first, second, third, fourth और fraction में भी हो सकता है. Number of cases it may be in fraction. Calculate कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास questions आते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन या तो डायरेक्ट दे दिया गया, ऑब्वियसली दे ही दिया जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप करके नहीं देख सकते हैं. सो यू वुड बी गिवन द रेट लॉ एक्सप्रेशन और उसके बेसिस पे आपको क्या बताना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना है आपको, केवल जो पावर्स हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनका सम कर देना है. दैट वुड बी योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. एंड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, फिर आपसे कह दें इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया या इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज के बेसिस पर हम बात करते हैं, जब किसी एक की बात कर रहे होते हैं तो दूसरे को कांस्टेंट मान के चलते हैं. यानी इसके रेस्पेक्ट में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि मैंने इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, अब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इन दोनों को आप क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट मान के चलोगे. दैट वी सी इन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, हम लोग वो बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की. तो सिंपल टाइप के एक तो ये न्यूमेरिकल मिलेंगे, जैसे कि ये दे दिया गया रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, रिएक्शन ये है, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ. देन यू हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है. कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे हम. ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान में रखना है. 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर तक की हम लोग बात करेंगे. हालांकि हमारे सिलेबस में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे. सो विल सी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जो एक दो आप याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. सो यू मस्ट बी नोइंग. ठीक है, या न्यूमेरिकल्स में अगर आपको पता है एग्जांपल्स तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. अगर आंसर आपका रॉन्ग आ रहा है सो यू वुड बी एबल टू टेल के हाँ, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है. ये तो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है हमारा. सो एग्जांपल फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन. 0 ऑर्डर कौन सा होगा, 0 ऑर्डर तब आएगा जब इन रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी होगी ही नहीं रेट की. यानी उस केस में जिसमें कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
K हो जाएगा। यानी अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं H2Cl2 gives 2HCl, ठीक है, ये कैसी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी, जब R इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर 0 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू द पावर 0। यानी यहाँ पर जो है हमारे कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड ही नहीं करता है रेट, इसलिए इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर द केस, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। यानी सॉलिड सरफेस होना चाहिए या एंजाइम का सरफेस होना चाहिए, उस केस में बेसिकली हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ या ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, दैट इज आल्सो देयर ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम एट अराउंड 1130 केल्विन, ठीक, N2 plus 3H2, दैट इज आल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है, दैट यू आर टू रिमेंबर। नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान रखेंगे आप SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन, ठीक है, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन गिव्स SO2 plus Cl2, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इट मींस इस यहां पर जो हमारा R डिपेंड कर रहा है दैट इज एक्टिव मास ऑफ SO2Cl2, ठीक है ना, वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ SO2Cl2। इन द सिमिलर मैनर आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, N2 plus half O2. In this case also it is being determined by one concentration term of N2O, इसके one coefficient के ही पर ही डिपेंडेंसी है। इन द सिमिलर मैनर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक रिएक्शन देखी थी, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2F, ठीक है, दैट वाज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या मतलब प्रिपरेशन हम देख ले रहे थे तो उस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि NO2 प्लस, सॉरी ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दिस इज व्हाट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल देखा था हमने। सो लेट्स सी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर में एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यही रिएक्शन, ठीक है, यही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी अगर हम यहाँ AU का यूज ना करें। मींस वी आर गोइंग टू डिकम्पोज HI, हम क्या कर रहे हैं, HI को डिकम्पोज कर रहे हैं ऑन हीटिंग, सो दैट वुड बी योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इन द सिमिलर मैनर सुपैनिफिकेशन, सुपैनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसिटेट CH3 COO C2H5 plus NaOH, ठीक है, so that would be saponification of ethyl acetate, it will form CH3 COO Na plus C2H5OH। यानी इस केस में अगर हम लिखते हैं तो R would be equal to K HI raised to the power 2, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों के वन वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। नाउ लेट्स सी फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज अबाउट थर्ड ऑर्डर में देख लेते हैं। NO plus O2 gives NO2, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, R is equal to K NO raised to the power 2 and O2 raised to the power 1, so that is a third order reaction, 2 plus 1 is equal to 3। इसी तरीके से NO2 plus F2 gives, या NO2 plus Br2 ले लेते हैं, ये थोड़ी सी एक्सप्लोजन हो जाएगी। NO2 plus Br2 gives NOBr, that is also our third order reaction।
NO plus Br2 gives 2NO Br. So that is third order reaction. अगर हम फ्रैक्शन में देखना चाहें, तो the example would be H2 plus Br2 gives 2HBr. ये हमारा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है देखते हैं अभी. रेट इज इक्वल टू K, H2 raised to the power 1 and Br2 raised to the power half. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया n का वैल्यू आ गया 1 plus half. It means 1.5, यानी 1.5 order reaction. So like this the reaction may be in fraction also. So here we are having some example of 0, first, second, third and fraction order reactions. ठीक है. So like this you can calculate the order of reaction. अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो. कुछ मान लीजिए आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप एक दो एग्जांपल देके लिख सकते हो. तो आपको एक या दो एग्जांपल तो एटलीस्ट लर्न होने ही चाहिए. ठीक है. Like this you can solve the question related to order of reaction only जब एक्सप्रेशन दे दिया जाए. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा यूनिट्स. ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ यूनिट की. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी रेट कांस्टेंट की, एट द टाइम आई सेड कि यूनिट किस बात पर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है. लेट्स सी, समझते हैं इसको. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी हर ऑर्डर रिएक्शन में हमारा यूनिट जो है वो डिफरेंट होता है. लेट्स सी हाउ. हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं. एन ए गिव्स प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ इफ सपोज आई हैव रिटन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस इज R is equal to K concentration of A raised to the power n. ये क्या है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है. तो n यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर है मेरी बात. ये एक रिएक्शन मैंने लिखा जिसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया. n हमारा क्या है, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ k. k का यूनिट मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ n लिखा है. फिर हम वहां पर वैल्यू पुट करके, कि जीरो ऑर्डर है तो जीरो वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर है 1, सेकंड 2 है, सेकंड ऑर्डर 2, 3, 4 लाइक दिस, एंड वी कैन कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. एक जनरलाइज फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं. r बेसिकली क्या है हमारा, रेट हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, दैट इज व्हाट, dx अपॉन dt. ठीक है, यही होता है ना हमारा रेट. नाउ dx अपॉन dt के बेसिस पर इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या है हमारी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तो हमने निकाला था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू K. व्हाट अबाउट एक्टिव मास ऑफ A. ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A की. एक्टिव मास ऑफ A का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A. कंसंट्रेशन के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन. मोलर कंसंट्रेशन का मतलब इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स. यस और नो, क्लियर हो रही है मेरी बात. सो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू K मोल लीटर इनवर्स. ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, K का वैल्यू रेज टू द पावर n और लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, सो मुझे क्या कैलकुलेट करना था, K कैलकुलेट करना था. तो K वुड बी इक्वल टू व्हाट, K would be equal to mole liter inverse second inverse upon mole liter inverse raised to the power n. ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, K is equal to, जब ये ऊपर में जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, मोल पर लीटर दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मोल लीटर इनवर्स 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1. ये भी इसे दो चीजों में लिख लो, इसकी पावर 1 लिख लो, इसकी पावर 1 लिख लो. ठीक है ना. सो इट वुड बी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n.
इज दैट क्लियर? सेकंड इनवर्स। इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना के को मैं, I can write k is equal to mole liter inverse 1 minus n second minus 1. So here what I am having, क्या किया हमने, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना लिया जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर k का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, उसकी यूनिट कैसे डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ये क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देना है। ठीक है, सो व्हाट आई एम टू कैलकुलेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर मान लीजिए, उसके लिए मेरे से कांस्टेंट k की यूनिट पूछी गई है, तो व्हाट आई एम टू डू, मुझे यहाँ जीरो प्लेस कर देना है केवल। सो व्हाट आई एम टू राइट, मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। सो इट इज क्लियर। ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए बेसिकली हमारी यूनिट क्या आ गई, दैट वुड बी मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 1। ठीक है, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, 1। इज दैट क्लियर? किसी की भी पावर 0 होने का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, 1। तो हमारा यूनिट क्या रह गया, सेकंड इनवर्स। क्लियर हो रही है मेरी बात? k इज इक्वल टू मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस n, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, n का वैल्यू आएगा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो मोल लिटर इनवर्स रेज टू द पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आंसर आएगी हमारी यूनिट सेकंड इनवर्स। सो लेट्स सी अबाउट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए अगेन मैं ये ले लेती हूँ, k इज इक्वल टू मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब मुझे यहाँ क्या लगा देना है, 2। सो मैंने लिख दिया यहाँ मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, यानी क्या आ गया, मोल लिटर इनवर्स माइनस 1 सेकंड इनवर्स। यानी आंसर क्या आएगा मेरा, लिटर, ये लिटर पॉजिटिव में हो जाएगा, मोल पर लिटर था। ठीक है, रेज टू द पावर क्या है, -1, तो दैट वुड बी लिटर मोल -1 सेकंड -1। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारा यूनिट क्या आ गया, लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इन द सिमिलर मैनर फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ हम n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। तो 1 माइनस 3 का मतलब -2, यानी हमारा क्या आएगा वैल्यू, मोल अपॉन लिटर रेज टू दी पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 सेकेंड इनवर्स। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लिटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिटर, ये अपॉन में पहले से ही है, सो दैट वुड बी लिटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। सो आप इसे आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और बल्कि आपको क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। वाई, क्योंकि आपसे बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको वहां पर ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दे रखा होता, आपसे रेट दिया जाता है। ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया जाता है विद यूनिट। केवल आपको क्या बताना होता है, ऑर्डर। वेरी सिंपल, आप क्या यूनिट को देख के नहीं बता सकते ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। यू कैन इजीली बी एबल टू टेल कि आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यूनिट क्या दे रखी है के की, मोल इनवर्स लिटर सेकंड इनवर्स, तो ये होगी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ सेकंड इनवर्स दे रखा है तो इट मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो दैट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर लिटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स है तो दैट वुड बी योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो लाइक दिस you can
इजीली डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। बहुत सिंपल होते हैं, एक एक नंबर में आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको यूनिट देखकर बता देना है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे के पूछा जाएगा आपसे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो सिंपली आपको सम कर देना है कोफिशिएंट टर्म्स का। सो लाइक दिस यू आर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल 2 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, अभी 2 क्वेश्चन हम और करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपसे इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चन और बनते हैं। आई थिंक ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं उनको भी ले लूंगी, बट अभी हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। योर क्वेश्चन इज a reaction is first order in reactant A and second order in reactant B। ठीक है, a reaction is first order in reactant A and second order in reactant B. How is the rate of reaction affected when, first part पूछा है आपसे, concentration of B alone increase 3 times। सेकेंड पार्ट पूछा है आपसे, concentration of A and B both is doubled। ठीक है, द काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर कि आपको एक रिएक्शन बताई गई है जहां पर के एक रिएक्टिंग स्पीसीज ए है जो कि फर्स्ट ऑर्डर को बताती है, दूसरी रिएक्टिंग स्पीसीज बी है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। तो हम इसके बेसिस पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, दैट रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू दी पावर, क्या लिखना चाहिए हमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और बी के किस टर्म पर डिपेंडेंसी है, 2 पर, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज आएगा या क्या चेंज आएगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दें, 3 टाइम्स कर दें। ए की कंसंट्रेशन को हमें कोई चेंज नहीं करना, बट बी की कंसंट्रेशन हमें 3 टाइम्स कर देनी है। सो वी कैन राइट let the concentration of A is small a and B is small b। ठीक है ना, A का क्या है, कंसंट्रेशन A है और B की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल b। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, R would be equal to K A B स्क्वायर। ठीक है, रेट हमारा ये हो गया। अब ये हमसे फर्स्ट पार्ट जो पूछ रहे हैं उसमें क्या किया उन्होंने, केवल कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ाया है 3 टाइम्स, ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब हम करेंगे जो हमारा नया रेट कांस्टेंट आएगा आर डैश, दैट वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ए वाले जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए ये अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी। जो बी वाली रिएक्टिंग स्पीसीज है उन्होंने 3 टाइम्स कर दिया, तो दैट वुड बी 3 बी, यानी ये इसका कंसंट्रेशन है, ये इसका कंसंट्रेशन है, बी रेज टू द पावर 2। ठीक है ना, सो दैट वुड बी 3b स्क्वायर। क्लियर है? सो जो हमारा आर डैश बनेगा वो क्या बनेगा, के 3 रेज टू द पावर 2 और b स्क्वायर। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 3 9, सो 9ab स्क्वायर।
अब इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या आ रहा है आपका, जो R डैश आ रहा है, जो आपका न्यू रेट आ रहा है, वो कितना टाइम्स है, इस वाले का 9 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है? सो अब ये पूछ रहे थे आपसे, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? सो रेट ऑफ रिएक्शन will be 9 times of previous rate। यही हो जाएगा, जो हमारा नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा that would be 9 times than that of the previous rate। So like this you can solve this question, the first part। I think second part clear हो गया होगा। सो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ गॉट डबल्ड। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है इस बार। सो लेट्स सी, पहले हमारा कंसंट्रेशन क्या था, R इज इक्वल टू के, ए है इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है स्मॉल बी, ये था हमारा। अब हमने क्या किया, न्यू रेट हमारा किस पर डिपेंड करेगा, इसको भी डबल कर दिया गया, दैट वुड बी 2a, इसको भी डबल कर दिया गया, दैट वुड बी 2b। आंसर कितना आ जाएगा, 2 to the 4 2 the 8, so that would be 8ab square। ठीक है, सो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमारा क्या था, r इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, r डैश इज इक्वल टू के 8ab स्क्वायर, सो दैट वुड बी 8 times। So these kind of questions will also be there in your examination। ये भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, इसके टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। डन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन पे सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक सम ऑफ देम आल्सो। सो द क्वेश्चन इज, शो बाय यूजिंग rate law how much rate of रिएक्शन आपको दे रखी है बेटा, कंबशन ऑफ NO will change if volume of reaction vessel is reduced to one third of initial volume। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कोई चेंज आएगा अगर हम रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम रिड्यूस करके क्या कर दें, दैट वुड बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन वेसल। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो रेट वुड बी, क्योंकि हमें कुछ यहाँ एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है तो हमें उसको क्या सपोज करके चलना है, इज इक्वल टू NO रेज टू द पावर 2 एंड O2। ठीक है, नाउ यू हैव बीन गिवन कि आपने क्या किया है, रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम 1/3 कर दिया। ठीक है, रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम 1/3 करने का क्या मतलब है, क्या रिएक्शन वेसल के वॉल्यूम का कंसंट्रेशन से कुछ रिलेशनशिप है? सो व्हाट वी नो दैट C इज इक्वल टू N/V। ये हम लोगों को पता है ना कि कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स
पर लीटर, ठीक है ना। अब पर लीटर यहाँ पे हम ये अगर सपोज करें कि ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, जिसको हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो अगर हम इसको 1/3 कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी 3 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सो वी कैन से कि अगर हम रिएक्शन वेसल के वॉल्यूम को 1/3 कर देते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टिंग स्पीसीज का, 3 टाइम्स। आर यू गेटिंग मी? तो बस आपको वही कर देना है, आपको रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन क्या कर देना है, 3 टाइम्स कर देना है। So we'll write down R dash is equal to K, that would be 3 NO whole square and 3 O2। पहले हमारी ये वैल्यू थी, अब हमारी ये वैल्यू हो गई, तो 3 3 9 और 3 27, इन वैल्यूज को अगर आप बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो R dash would be equal to K and that would be 27 NO square O2। जब इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं हम तो सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, देखिए आपके पास क्या रह जा रहा है, 27। सो इट वुड बी 27 टाइम्स देन दैट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन वेसल। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 27 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? सो ट्राई फॉर द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पे कि आपको वॉल्यूम या फिर आपका कंसंट्रेशन रिड्यूस या फिर डबल या ट्रिपल कर दिया जाए, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस करने हैं। 2 मार्क्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर एक स्टेप होगा तो आपको 1 मार्क में आ जाएगा, अदरवाइज 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं कोई मार्क्स आपका लूज करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, फुल मार्क्स आपके इस पर बनते हैं। सो प्रैक्टिस फॉर दैट एंड कीप रिवाइजिंग द चैप्टर till now which we have discussed. Okay, thank you.